Good evening, students. Welcome to part 3 of Civics Chapter 1. In earlier two videos, I told you about what is democracy, and the first feature of democracy was discussed, and how General Pervez Musharraf converted democratic rule into a military rule. So, here in this video, we'll talk about the second feature of democracy, which is free and fair electoral competition. That means there should be a transparency in elections and no unfair means should be involved while we conduct elections. So we'll study about two countries. First is China and second is Mexico. In both the countries we will see that the elections are held but the transparency is not maintained. They are using unfair means and a certain party is being dominant in both the countries. Other parties are also participating but they are not able to win the party because the domination rule is always favoring the single party, and that independent party always wins majority and always forms the government. So first we will read about China. So in China, elections are held at fixed interval of 5 years in order to elect the president को elect करने के लिए elections होते हैं चाइना में, and the power to elect the president is in the hand of parliament, which is known by the name of National People's Congress. So there's a confusion कि National People's Congress क्या है. तो National People's Congress is a term used for Chinese parliament. In Chinese terms also we have one name mentioned in your book which is known as Quangbyo Renmin Diabio. So you should be well aware of this term also. And in normal simple terms it is mentioned as National People's Congress. So in China, National People's Congress is having the power to appoint the president of the country. So entire power lies with National People's Congress. यहाँ पे लोगों के पास पावर नहीं है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास पावर है कि ये किसको इलेक्ट करेगा, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा. नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो देर आर ऑलमोस्ट 3000 मेंबर्स और वो सारे मेंबर्स पूरे चाइना में से इलेक्ट होके इस पर्टिकुलर ऑर्गन में आके अपॉइंट हुए हैं. देन एक कंडीशन है चाइना में कि इफ़ एनी पर्सन नीड्स टू कंटेस्ट इलेक्शन देन दैट पर्सन हैज़ टू गेट एन अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. वहाँ की एक डोमिनेंट पार्टी है जिसका नाम है द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. यहाँ पे किसी को भी अगर इलेक्शन कंटेस्ट करना है, किसी को भी इलेक्शन में खड़े होना है, तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन टू गेट द अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. सो 2002 और 3 में जब इलेक्शंस हुए थे तो वहाँ पे जब या तो आपको अप्रूवल मिलेगा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से या तो उसके साथ जो 8 दूसरी छोटी छोटी पार्टीज़ एसोसिएटेड हैं उनकी अप्रूवल के बाद ही अ पर्सन विल बी अलाउड टू contest election. So this was the case of 2002 and 2003 जब अप्रूवल मिल गया था चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का और उससे छोटी छोटी एसोसिएटेड जो 8 पार्टीज़ हैं उनके पार्टीज़ का जब अप्रूवल मिल गया था then they were allowed to contest election. This is the case of 2002 and 2003. और एज अ रिज़ल्ट जो इलेक्शंस थे वो हमेशा एक ही पार्टी जीतती थी एंड दैट पार्टी वॉज चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ओनली. अपोजिशन पार्टी को कभी भी मौका नहीं मिलता था कि दे विन. उनको पास कभी भी वोट्स आए नहीं. क्यों नहीं आए? क्योंकि द इलेक्शंस वर नॉट ट्रांसपेरेंट. इलेक्शंस बहुत ही एथिकल वे में हुए ही नहीं कभी. कुछ ना कुछ उसमें अनफेयर मीन्स का प्रैक्टिस हुआ था जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी वो डोमिनेंट थी और लोगों को कहीं ना कहीं फोर्स किया जाता था कि आप किसको वोट करोगे, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को ही वोट करोगे. एंड अ रिजल्ट ऑफ विच इट ऑलवेज formed a majority and the government was always formed by the Chinese Communist Party only. So we see that in China, although the elections were held, but they were manipulated by using unfair means and hence we can't call them free and fair election. So ये जो केस है इसको हम लोग फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि फ्री और फेयर इलेक्शन तब होता है जब सबको बराबर से मौका मिलता है टू पार्टिसिपेट एंड टू विन एंड टू लूज़. ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी बस आ रही है, एक ही पार्टी लगातार विन कर रही है. ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर पार्टी में कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ शॉर्ट कमिंग्स होती हैं जो कि नेक्स्ट इलेक्शन में लोगों को पसंद नहीं आती है तो दे वोट अगेंस्ट देम. बट हेयर वी सी दैट ओनली वन पार्टी इज़ ऑलवेज
फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसा अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस हो रहा है जिसकी वजह से ओनली वन पार्टी इज़ गेटिंग द पावर एंड रेस्ट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इज़ नेवर गेटिंग द opportunity to come into power. So this was the case of China, and the dominant party in China is the Communist Party of China. तो ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी. What is the name of Chinese Parliament? What is the name of the dominant party in China? How they won the party? क्या क्या तरीके यूज़ हुए थे. तो this was the case of China. The same is with Mexico also. I told you चाइना में हर 5 साल पे इलेक्शंस होते हैं, बट हेयर इन मैक्सिको हर 6 साल पे इलेक्शंस हो रहे हैं इन ऑर्डर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट. मैक्सिको को उसका फ्रीडम मिला था 1930 में, और तब से जो कंट्री है ना तो वो कभी किसी मिलिट्री रूल में रहा है ना तो डिक्टेटर्स रूल में रहा है. लेकिन 1930 से लेके 2000 तक इलेक्शंस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ना ऑटोक्रेटिक रूल है, ना मोनार्की रूल है, ना डिक्टेटर्स रूल है. तो उसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक रूल चल रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं, तो दैट मीन्स दे आर फॉलोइंग द थीम ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन यहाँ पे भी एक ही पार्टी है जो लगातार मेजॉरिटी विन करके गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है. चाइना में द पार्टीज़ नेम वॉज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और यहाँ मैक्सिको में एक पार्टी है जिसका नाम है PRI. ऑल्दो द फुल फॉर्म इज़ बिट जम्बल्ड. इट्स इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी. आपको नाम याद रखना है. द फुल फॉर्म ऑफ PRI इज़ इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी. सो सिंस द इंडिपेंडेंस टिल 2000 एक ही पार्टी पावर में आपको दिखेगी, एंड द नेम ऑफ दैट पार्टी इज़ PRI. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जस्ट लाइक चाइना कम्युनिस्ट पार्टी अपने अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस कर रही थी, ठीक उसी तरीके से PRI भी यहाँ पे अपने कुछ अनफेयर ट्रिक्स को यूज़ कर रही है. अब कौन कौन से ट्रिक्स हैं, दैट आई हैव जॉटेड डाउन. द फर्स्ट पॉइंट इज़ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वर फोर्स टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स. जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हैं, उनको फोर्स किया जाता था कि आपको पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करनी है. जब आप पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको वोट भी करोगे और आप उसके फेवर में ही अपना वोट दोगे. सो ये ट्रिक्स अपनाई गई थी PRI से, ताकि मैक्सिमम लोगों को अपनी तरफ क्या कर सकते, अट्रैक्ट कर सके. सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, टीचर्स जो थे गवर्नमेंट स्कूल्स के, वो अपने बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि आपको हमारी पार्टी को वोट करना होगा, बिकॉज योर चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन आवर स्कूल, सो यू हैव टू वोट फॉर अस. तो पेरेंट्स वर ऑल्सो फोर्स टू वोट, कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ PRI. थर्डली, मीडिया जो थी वो पूरी तरह से डोमिनेट हो रही थी PRI से. दे वर नॉट एबल टू शो और हाईलाइट द वर्क्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी. वो अपोजिशन पार्टी के काम को बिल्कुल भी दिखा नहीं पाती थी, वो रूलिंग पार्टी के शॉर्टकमिंग्स को दिखा नहीं पाती थी. वो सिर्फ वही दिखा पाती थी मीडिया, या वही चीज़ कवर कर पाती थी जो PRI उनको कवर करने के लिए बोलती थी. तो इन दिस वे द नेगेटिव और द शॉर्टकमिंग्स ऑफ PRI वॉज hidden, and only the criticism was done for the opposition party. opposition party गलत है, opposition party के काम गलत हैं, यही चीज़ें हाईलाइट की जा रही थी, so that people are not aware of the weaknesses and the shortcomings of the ruling party. ruling party कौन सी, PRI. Next, polling booths were shifted at the last hour, creating प्रॉब्लम्स फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स. पहले से आपको पता रहता है कि आपका पोलिंग बूथ कहाँ है, तो नेक्स्ट डे यू इजीली गो टू दैट प्लेस एंड कास्ट योर वोट. यहाँ पे लास्ट आवर में पोलिंग बूथ ही शिफ्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है. दे आर नॉट एबल टू गो टू देयर स्पेसिफाइड प्लेस एंड कास्ट देयर वोट. तो ये भी एक तरह से एक अनफेयर मीन्स था, जिसकी वजह से लोग जो थे वो अपने फेवर्ड कैंडिडेट को वोट नहीं कर पा रहे थे. And lastly, huge sum of money was invested by PRI to organize campaign for its candidates. और PRI ने बहुत सारा मनी पावर यूज़ किया था ताकि वो कैंपेन ऑर्गेनाइज कर सके, लोगों को टेम्प्ट कर सके, लोगों को फोर्स कर सके, लोगों को प्रेशर दे सके कि आपको किसके लिए वोट करना है, हमारी पार्टी के लिए. एंड द नेम ऑफ दैट पार्टी इज़ PRI. So like China and Mexico also, unfair means were used to win elections. Hence the second feature of democracy is also violated. तो हम लोगों ने देखा चाइना और मैक्सिको का केस, किस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, डिक्टेटर रूल नहीं है, मिलिट्री रूल नहीं है, डेमोक्रेसी की थीम चल रही है, लेकिन इलेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी है, ताकि चीज़ें जो हैं वो अपनी पार्टी के फेवर में कर सके. तो हैंस वी सी दैट द सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन है, वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है.